Hello students, welcome in HV Studies B.Ed Entrance Series MCQ Special. For any query, doubts, PDF notes, full class course, you can consult on the following WhatsApp number 827872375. Let's begin. First question of today is, in which year Secondary Education Commission came? Secondary Education Commission किस साल आया था? 1992-93, 1952-53, 1948-49, none of these. You can take your answer and at the last of video you can check your score. Here right answer is option number B, 1952 and 53. Next question is, under which act NPE 2020 approved by Cabinet? किस एक्ट के अंडर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई? एनसीटी एक्ट 1993, एनएचईवी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. हियर एनएचईवी is the National Higher Education Bill and National Policy on Education 2020 has been approved by Cabinet under the bill National Higher Education Bill. So B option is the right answer. Next question is, in which year second National Policy on Education came into force? Second National Policy on Education किस वर्ष फोर्स में आई थी, किस वर्ष स्टार्ट हुई थी? 1992, 1986, 1968, 2020. अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस रेगुलर देख रहे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हो स्टूडेंट्स. Here right answer is option number B, 1986. In year 1986, second National Policy on Education came into force. Next is the, in which year 42nd Constitutional Amendment came? 42nd Constitutional संविधानिक संशोधन किस ईयर आया था? 1968, 1976, 1953, 1988. Here right answer is option B, 1976. Here one question for you guys. 42nd National Constitution Amendment is related to with which? 42वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? Yes students. Next question is, University Education Commission was established in. University Education Commission कब establish किया गया था? 1958, 1926-27, 1948-49, 1964-66. Here right answer is option number C, 1948 and 49. Next is, which state can become the first state to fully implement National Policy on Education 2020? कौन सी स्टेट नेशनल पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट बनने वाली है? केरला, राजस्थान, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश. Here right answer is option number C. कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि वो सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 को फुल इम्प्लीमेंट कर देगी. नेक्स्ट इज, अंडर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020, राइट टू एजुकेशन एक्सटेंडेड अप टू 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंडर राष्ट्रीय राइट टू एजुकेशन को किस लेवल तक एक्सटेंड कर दिया गया है? 6 to 14 years, 6 to 10 years, 3 to 18 years, 3 to 15 years. Here right answer is option number C, 3 to 8. Next question is, when was IGNOU established? IGNOU को कब establish किया गया था? 1988, 1994, 1985, 2000. So most repeated question, IGNOU was established in 1985. Indira Gandhi National Open University, 1985. Next is, AICTE stands for. AICTE की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया सेंटर फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE. AICTE की इस्टेब्लिशमेंट 1945 में की गई थी और ये
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है और इसका गठन 1945 में किया गया था. नेक्स्ट इज व्हाट अमाउंट ऑफ जीडीपी विल बी इन्वेस्टेड ऑन एजुकेशन इन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जीडीपी का कितना परसेंट एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा? 5%, 4.75%, 5.46%, 4.43%, 6%. Here right answer is option number D. 6% of GDP will be invested on education according to National Policy on Education 2020. Next question is, when was National Testing Agency established? नेशनल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी कब इस्टेब्लिश की गई थी? अप्रैल 2007, सितंबर 1994, दिसंबर 2000, नवंबर 2017. राष्ट्रीय जांच एजेंसी नवंबर 2017 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है. ये जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हायर स्टडी के लिए इंस्टीट्यूशन के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाती है, जैसे आई ट्रिपल ई, नीट एटसेट्रा. नेक्स्ट इज व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार मार्क सो दैट द नंबर 5413*06 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9. अब स्टार मार्क के लिए कौन सी वैल्यू दोगे ताकि नंबर 5413*06 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए? 8, 5, 9, 10. स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए. और 9 का डिविजिबिलिटी रूल रहता है, अगर जो भी वैल्यू आपको दी हुई है, इनके जितने भी नंबर हैं, डिजिट्स हैं, इनका आपने सम करना है. 5, 4, 9, 9 + 1, 10, 10 + 3, 13, 13 + 6, 16. Sorry, 13 + 6 is 19. It's 19. So 19. अब स्टार मार्क में आप ऐसा नंबर ऐड करोगे कि नंबर जो है 9 का मल्टीपल, इसका सम जो है वो 9 का मल्टीपल बन जाए. तो इफ वी ऐड 19 + 8, 19 + 8, 27, and 27 is a multiple of 9. So it can be right answer. Let's check next options. 19 + 5, 19 + 5, 24. 24 is not a multiple of 9. 19 + 9, 19 + 9, 28. 28 is also not a multiple of 9, so it's also wrong. 10, 19 + 10, 90 + 10 is 29. 29 is also not a multiple of 9, means ये भी possible नहीं है. So right answer will be option number A, 8. अगर आप स्टार मार्क की जगह 8 नंबर डिजिट ऐड करोगे तो ये नंबर जो है वो कंप्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाएगा. क्लियर? तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या रहता है? जो भी वैल्यू आपको चेक करनी है कि 9 से डिविजिबल होगी, उनके जितने भी डिजिट्स हैं उनका आप सम करो और चेक करो कि वो जो सम आता है वो, फॉर एग्जांपल आपका 27 आया, तो अगर ये 9 का मल्टीपल है, 9 के टेबल में आता है, तो मीन्स ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा. अगर ये 9 का मल्टीपल नहीं है तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा. इस तरह के क्वेश्चन आपको 1-2 एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं. नेक्स्ट इज Article 45 under the directive principles of state policy in the Indian Constitution provides for. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर जो आर्टिकल 45 रहता है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लेस एडवांस स्टेट्स, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, नन ऑफ दिस. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. आर्टिकल 45 provides for free and compulsory primary education. Next question is, by which constitutional amendment education is added in the concurrent list? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा को concurrent list में ऐड किया गया है? concurrent list ऐसी लिस्ट होती है, इट्स आल्सो नोन एज समवर्ती सूची, हिंदी में इसे बोला जाता है समवर्ती सूची. समवर्ती सूची के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही हैंडल कर सकती है, उनमें अमेंडमेंट कर सकती हैं. सो एजुकेशन को कब ऐड किया गया था? बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन कांट हियर साउंड ऑन द मून बिकॉज इट हैज नो. कोई पर्सन साउंड को
मून के ऊपर साउंड नहीं सुन सकता है, इसका क्या रीज़न है? मून में क्या नहीं होता है? एटमॉस्फेयर, डार्कनेस, लाइट, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। और साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। विदाउट मीडियम साउंड कांट ट्रेवल फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इज, इन गांधीज ओपिनियन अहिंसा एंड ट्रुथ आर, गांधी जी के ओपिनियन में अहिंसा और ट्रुथ क्या है? हैव नो रिलेशन, कांट ट्रांसलेट, टू साइड ऑफ अ कॉइन, नन ऑफ दिस। In Gandhi's opinion, ahimsa and truth are two sides of a coin. C option is the right answer. Next question is, when was right to education enforced in whole country? Right to education को पूरी कंट्री में कब इम्प्लीमेंट कर दिया गया था? Yes, May 2009, April 2010, December 2009, April 2009. सो राइट टू एजुकेशन आपका कब आया था? राइट टू एजुकेशन आपका 2009 में आया था और इसको पूरी भारत में इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया गया था बाई फर्स्ट अप्रैल 2010. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट्स. नेक्स्ट इज, इन टुडे सोसाइटी स्कूल शुड गिव, आजकल की सोसाइटी में स्कूल को क्या कैसा होना चाहिए, क्या देना चाहिए? ऑर्नामेंटल बेस, वोकेशनल बेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वोकेशनल बेस. नेक्स्ट इज, which of the following number is a prime number? Here it's prime number, not it's prime number. इनमें से कौन सा नंबर जो है वो प्राइम नंबर है? 147, 149, 159, 140, 117. Here right answer is option number A, 147 is a prime number. प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. इसके अपोजिट रहता है कंपोजिट नंबर, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 इटसेल्फ एंड अदर फैक्टर्स. सो हियर राइट आंसर इज 147. 147 1 से डिविजिबल है और 147 से डिविजिबल है. इसके अलावा 149, 159, 117 इन ये दीज आर कंपोजिट नंबर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज, व्हेन वाज नेशनल लिटरेसी मिशन स्टार्टेड? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब इस्टेब्लिश किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था? 1993, 1983, 1988, 2001. ये राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1988. नेक्स्ट इज, व्हेन कैबिनेट अप्रूव्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी थी? 25 दिसंबर 2019, 1 मार्च 2020, 15 जून 2020, 29 जुलाई 2020. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी थी. नेक्स्ट इज, इट्स प्रीवियस सीरीज क्वेश्चन. व्हाट विल बी पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020? मैक्सिमम स्टूडेंट ने राइट आंसर किया है. राइट आंसर इज 5 + 3 + 3 + 4. 5 + 3 + 3 + 4. Next is, today's question for you guys is, under National Policy on Education 2020, goal of 100% GER, that is gross enrollment ratio, is up to? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंडर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का गोल 100% कब तक रखा गया है? किस ईयर तक 100% GER करना है? Write your answer in comment box. Thank you. If you like the video, then don't forget like, share and subscribe for further notifications. Keep on watching.